Hello everyone. I think everyone is fit and fine in the time of corona epidemic. Always use mask and sanitizer to sanitize your hand and maintain proper gap when you are talking to a person, at least 1 meter gap. So from last 15 days, I think you all have enjoyed your summer holidays. Those many students have submitted the summer holiday work, but those who have not submitted as soon as possible. So today we will start class 9 chapter 4 linear equation in two variable. Before starting linear equation in two variable, let me introduce yourself about the linear equation in one variable. Any equation where the alphabets are used as a variable whose value is different in different questions, they are known as linear equation in one variable. Some examples I have written here: x plus 2 is equal to 0, x plus root 2 is equal to 0, y minus 3 is equal to 4. In all three examples, it has one variable. In this example, x is variable. In the second example, x is variable, and in the third example, y is variable. So this type of equation which have only one variable, that have only one solution. How? Suppose x plus 2 is equal to 0. If you solve it by transposition of 2, 2 will be shifted on the right side, the sign will be minus 2. X equal to minus 2 is the solution. Okay, similarly this is x equal to minus root 2 and y equal to 4 plus 3, that is 7. So it has the first property of linear equation in one variable, it has unique solution, it has only one solution. Okay, and second, it can be drawn on the number line at a specific point. Suppose x equal to minus 2 you have to draw on the number line. This is the x-axis, this is 0, this is minus 1 and this is minus 2. This is the point of x equal to minus 2. Okay, now today let us discuss one more situation. Suppose in a match of India and Sri Lanka, which played in any city, Kolkata or Kanpur, two batsmen of India has scored 180 marks, 180 runs. Two batsmen, and total runs is 180. Is it clear? You don't know the how many runs has been made by both the batsmen. Suppose, then in this condition you have to suppose the runs made by both the batsmen. So suppose one batsman has made x run and second batsman has made y run. The sum of the total is 180. You can see in this equation x is also a variable and y is also a variable. So this type of example is known as linear equation in two variable, where two unknown quantity you have to suppose. जहाँ दो अननोन क्वांटिटी है जो इसको आपको सपोज करना है. जैसे मान लीजिए कि आप मार्केट गए, आपने कुछ एप्पल खरीदा और कुछ वो बनाना खरीदा, या कुछ एप्पल खरीदा और कुछ ग्रेप्स खरीदे, और टोटल क्वांटिटी आपकी 5 kg हुई. आपको पता नहीं है आपने बनाना क्या या ग्रेप्स कितना खरीदा और एप्पल कितना खरीदा. तो क्या करेंगे, आप दोनों क्वांटिटी को लेट करेंगे कि x kg एप्पल खरीदा और y kg ग्रेप्स खरीदा. तो x plus y is equal to 5. Okay. So I have told you two examples. In the first example, I have told you two batsmen has made 180 run. I have supposed batsman 1 has made x run and batsman y has made y run. So x plus y is equal to 180. In the second example, I have told you have bought some grapes and some apples. I have bought x kg of apples and y kg of grapes. The sum of these two is y. So here you can see two variables are there, that is x and y. Okay. So any equation which have two variable
that is known as linear equation in two variable. What is the definition? Any equation which can be put in the form of ax plus by plus c. ax plus by plus c is equal to 0 where a, b and c are real numbers. जहाँ a, b और c real numbers होते हैं and a and b are not both 0. a और b दोनों 0 नहीं होने चाहिए, इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. ओके, मतलब कि कोई भी इक्वेशन विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 वेयर a, b, c आर रियल नंबर्स एंड a एंड b शुड नॉट बी इक्वल टू 0. c 0 हो सकता है लेकिन a और b 0 नहीं हो सकता. दैट इज नोन एज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. दिस डेफिनेशन एंड एग्जाम्पल यू हैव टू राइट इन योर notebook. Okay, now see here, this is the first equation, x plus y is equal to 180. Suppose I have asked you that write it in the form of ax plus by plus c. Okay, this is x plus y minus 180 will come on left side, the sign will be changed, minus 180 is equal to 0. Okay, अब देखिए इसे कहा गया ax प्लस by प्लस c के फॉर्म में चेंज करने के लिए इज इक्वल टू 0 वेयर a, b, c आर रियल नंबर्स. तो a x के साथ a है तो यहाँ x के साथ कौन सा रियल नंबर है? आप कहोगे कुछ नहीं है, लेकिन ये आपको मालूम होना चाहिए कि कोई भी वेरिएबल जब सिंगल होता है उसके साथ कोई नंबर होता है, नहीं होता तो साइलेंटली 1 होता है. तो a की वैल्यू यहाँ क्या हो गई? x के साथ a इक्वल टू 1. ठीक उसी तरह b के साथ क्या हो गया? b इज इक्वल टू 1. y के साथ b है तो y के साथ यहाँ कोई नंबर नहीं है तो b इज इक्वल टू 1 हो गया. c इज इक्वल टू, ये देखो c के साथ क्या है? अगर यहाँ प्लस 180 होता तो सिर्फ 180 लिखते, लेकिन यहाँ माइनस 180 है तो साइन के साथ हम लिखेंगे माइनस 180. ओके, सो हियर आई हैव explained you how any equation can be represented in the form of ax plus by plus c. Let us come in second. x plus y is equal to 5. सिंपल सा है, सबको लेफ्ट साइड में लिखो. x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0. ओके, तो यहाँ ये ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0. तो a के साथ क्या है? यहाँ x के साथ देखो 1 है, b y के साथ क्या है? यहाँ 1 है, और c क्या है? माइनस 5 है. एक चीज डिफिनेशन में ध्यान दीजिए कि x प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 वेयर a, b, c आर रियल नंबर्स बट a एंड b आर नॉट बोथ 0. a और b 0 नहीं होने चाहिए. तो यहाँ ध्यान दीजिए a और b 0 नहीं होने चाहिए, मतलब क्या? जैसे कि यही एग्जाम्पल है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5. x प्लस वाई इज इक्वल टू 5. अगर x के साथ यहाँ 0 होता या y के साथ यहाँ 0 होता तो 0 से जब ये x को मल्टीप्लाई कर दोगे, 0 से y को मल्टीप्लाई कर दोगे तो इट विल कन्वर्टेड इनटू 0. दैट्स व्हाई इट इज सेड दैट a एंड b शुड नॉट बी इक्वल टू 0. ये यहाँ 0 हो सकता है, c की वैल्यू 0 हो सकती है. मतलब एक इक्वेशन देखो 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 0 हो सकता है. तो यहाँ अगर हम इसे ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में चेंज करें तो 2x माइनस 3y माइनस 0 इधर आएगा माइनस 0, तो 0 लिखने का कोई मतलब ही नहीं है. तो 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 0. तो यहाँ a की वैल्यू क्या हो गई? 2, b की वैल्यू क्या हो गई? माइनस 3, और c की वैल्यू क्या हो गई? 0. ये दोनों 0 नहीं होना चाहिए. x और y के साथ जो नंबर है c 0 हो सकता है. अंडरस्टूड? सो आई हैव टोल्ड यू any equation is in the form of ax plus by plus c is equal to 0 where a, b, c are real numbers and a and b should not be equal to 0. c can be 0 but a and b मतलब x के साथ जो रियल नंबर होगा और y के साथ जो रियल नंबर होगा वो 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो अगर 0 हो गया तो फिर x और y की कोई वैल्यू ही नहीं रहेगी. 0 से मल्टीप्लाई होगा, x और y भी 0 हो जाएगा, फिर वो इक्वेशन रहा ही नहीं. समझ गए? तो इसलिए ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 वेयर a, b, c आर रियल नंबर्स एंड a एंड b शुड नॉट बी इक्वल टू 0. नाउ कम टू एक्सरसाइज 4.1. एक्सरसाइज 4.1, दिस इज योर एक्सरसाइज 4.1. ओके,
Come to the first question. It is written that the cost of a notebook is twice the cost of a pen. The cost of a notebook is equal to the twice the cost of a pen. It is written that cost of notebook, ध्यान से देखिएगा इसको, cost of notebook is equal to twice the cost of pen. Cost of pen 2 into कॉस्ट ऑफ पेन. अब यहाँ देखिए, आपको ना नोटबुक की कॉस्ट पता है ना पेन की कॉस्ट पता है, समझ गए. राइट ए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट. ओके, अब यहाँ देखिए, तो ना नोटबुक की कॉस्ट आपको पता है ना पेन की कॉस्ट पता है, तो क्या करेंगे, लेट अस सपोज कॉस्ट ऑफ नोटबुक is equal to x rupees and cost of pen is equal to y rupees. Okay, so now come to the equation. cost of notebook हमने क्या लेट किया x और cost of pen क्या लेट किया y. 2 से मल्टीप्लाई है तो 2 into y, तो x is equal to 2y हो गया. ये आपका इक्वेशन बन गया. अब इसे आप अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना चाहते हैं x प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में, तो ये हो गया x माइनस 2y इज इक्वल टू 0. अब यहाँ आपसे पूछा जाए a b c की वैल्यू, तो x a की वैल्यू 1 हो जाएगी, b की वैल्यू -2 हो जाएगी क्योंकि y के साथ -2 है, और c कुछ है ही नहीं, तो दैट इज 0. दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन. अब आते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे. एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 एंड इंडिकेट द वैल्यू ऑफ a b एंड c इन ईच केस. तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड का फर्स्ट देखिए. द इक्वेशन इज गिवन 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9.355 टू द बार. ओके, कुछ नहीं करना है इसमें, जो अभी हमने बताया सबको जो है लेफ्ट साइड में आपको कन्वर्ट कर देना है. जो लेफ्ट साइड में है वो रहेंगे ही, जो राइट साइड में जो भी नंबर्स हैं या वैल्यूज हैं उनको भी आप लेफ्ट साइड में ट्रांसपोज कर देंगे, और जब साइड चेंज करेंगे तो उसकी साइन भी चेंज होगी. तो ये क्या हो गया, 2x प्लस 3y, और ये 9.35 टू द बार, ये लेफ्ट साइड आएगा तो -9.35 टू द बार इक्वल टू 0. अब ये हो गया, फिर से आप अपना फॉर्मेट लिख लीजिए, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0. तो a x के साथ a है, तो यहाँ x के साथ कौन सा नंबर है, 2, तो a इक्वल टू क्या हो गया, 2. ठीक इसी तरह b y के साथ है, तो y के साथ कौन सा नंबर है, 3, तो b की वैल्यू 3 हो गई, और c इज इक्वल टू -9.35 बार, 5 टू दी बार. ओके, समझ गए. ठीक इसी तरह सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखिए, x माइनस वाई बाई 5 माइनस 10 इज इक्वल टू 0. तो x माइनस ये y बाई 5 को हम 1 बाई 5 इंटू वाई लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें हमको जो है रियल नंबर्स को अलग करना है. ठीक है, और ये -10, तो a की वैल्यू x के साथ क्या है, 1 है, तो a की वैल्यू 1 हो गई, b की वैल्यू -1/5 और c की वैल्यू -10. समझ गए. तो मतलब x के साथ जो होगा रियल नंबर वो a की वैल्यू होगी, y के साथ जो होगा रियल नंबर वो b की वैल्यू होगी. यहाँ कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा x y ही वेरिएबल रहे, कोई भी वेरिएबल हो सकता है. तो जो पहला वेरिएबल के साथ जो रियल नंबर होगा वो x की वैल्यू हो जाएगी, a की वैल्यू हो जाएगी, और जो दूसरे वेरिएबल के साथ जो रियल नंबर होगा वो b की वैल्यू हो जाएगी. क्लियर. ठीक इसी तरह थर्ड है, -2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6. सबको एक तरफ कर दीजिए, तो -2x प्लस 3y माइनस 6. यहाँ x के साथ -2 है तो a इक्वल टू -2, y के साथ 3 है तो b इक्वल टू 3, और यहाँ -6 है तो c की वैल्यू -6. ठीक इसी तरह फोर्थ नंबर है, x इक्वल टू 3y, तो यहाँ 3y को इस साइड लाइए, x माइनस 3y. याद रखें, पहले x ही रखेंगे फिर y रखेंगे. अब यहाँ x के साथ क्या नंबर है, 1 है, तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -3 जो कि y के साथ है, और c इसमें है ही नहीं, कोई और नंबर है ही नहीं, तो c इज इक्वल टू क्या हो गया, 0. ठीक इसी तरह फिफ्थ नंबर, 2x इज इक्वल टू -5y को लेफ्ट साइड ले आओगे तो 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 0. तो a इक्वल टू क्या हो गया, x के साथ 2 है तो 2 हो जाएगा, b इक्वल टू क्या हो गया, y के साथ +5 है तो 5 हो गया, और c कुछ है ही नहीं तो c इक्वल टू 0. नाउ कम टू
क्वेश्चन नंबर 6 सेकेंड 6 दिस इज गिवन 3x + 2 = 0। अब यहाँ आप ध्यान दीजिए कि यहाँ केवल x है, y नहीं है। तो एक तरह से ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल तो है ही नहीं जब y नहीं है तो। लेकिन आपको इसे क्या करना है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के फॉर्म में, मतलब ax + by + c = 0 के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो ये क्या हो गया, 3x हो गया, y है ही नहीं तो हम क्या लिख देंगे 0y, क्योंकि 0 से y मल्टीप्लाई होगा तो जो y जो है वो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और +2। तो ये हो गया a = 3, यहाँ जो है 3x × 0 × y है, 3 × x 0 × y और +2। तो a = 3, b के साथ क्या है, b क्या है, y के साथ यहाँ 0 है तो b = 0 और c जो है 2 हो गया। ठीक है, ठीक इसी तरह y - 2, यहाँ x नहीं है तो क्या करेंगे, 0 × x + 1 × y, y के साथ क्या है 1 है तो 1 × y और ये -2। तो a = 0, b = 1 और c = -2। अब थर्ड देखिए, ये 5 है, 2x को इधर लाएंगे, 5 - 2x, फिर अरेंज करेंगे, पहले -2x फिर +5। अब इसे ax + by + c के फॉर्म में चेंज करना है, यहाँ भी y नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, -2x + 0 × y + 5। तो जहाँ भी वेरिएबल नहीं है, x नहीं है, y नहीं है, वहाँ 0y कर देंगे या 0x कर देंगे। तो a = क्या हो गया -2, b = क्या हो गया 0 और c = क्या हो गया 5। ठीक है, तो टुडे in this exercise I have told you what is linear equation of two variable. Okay, how can be converted in the form of ax + by + c, and what is the value of a, b and c in a given linear equation in two variable. Okay, that's all for today. Always use mask. Use hand sanitizer, and one more thing, solve properly this exercise 4.2 in your notebook. Okay, so always use mask, use hand sanitizer, and for more videos you have to subscribe my channel. So please comment, like and subscribe my channel. Okay, for other previous video the link has been given, and next video also I will upload for exercise 4.2. Thank you, have a nice day.